We begin this edition of news with breaking news coming in from Bengaluru, where in a shocking incident, a person from Sikkim named Dinesh Suba was brutally attacked by unknown miscreants who mistook him for a Chinese national. A racial attack there in the IT capital of India. According to the FIR, incident happened on August 15th in Electronic City in Bengaluru at 3 a.m. Prajwal is joining us on the phone line right now to give us more details of this attack that has taken place in Bengaluru. Prajwal, what are the details that you're gathering? This particular incident has come to light on the 15th of August from Electronic City police station in the wee hours of the morning at 3 a.m. and the victim has been identified as one Dinesh Suba, who was hailing from the northeastern state of Sikkim as well. And after finishing the party along with his brother-in-law and two of his friends, he was on his way to his home, and just before entering his home around 100 to 150 meters away, he has been racially called as Chinese for 2 to 3 times by three miscreants who were on a single moped, and then he has responded stating that he is an Indian and he hails from Sikkim. They have again chased him, and then they have started hitting him repeatedly with a blunt object on his head, and he was found profusely bleeding by the side of the road on the pedestrian walk, at which point of time a few of the motorists who were passing by have realized that something had become wrong, at which point of time they have informed the patrolling van, and finally the Garuda patrolling van has come in, at which point of time they have immediately taken him to the hospital and admitted him. Once he was admitted to the hospital, he has received 8 stitches on his head and around 3 stitches on his neck, which had been brutally, which had been brutally cut by these miscreants as well. And later, his brother-in-law went ahead and registered an FIR with the Electronic City police, stating that the miscreants had attacked him. And therefore, now cases have already been registered at the Electronic City police station, and the police are looking into it seriously. And this comes after the Home Department also intervened, stating that laborers, especially migrant laborers from any other state who are coming into Karnataka, should not be treated in such a way as well. And the cops are analyzing the CCTV footage, and they have stated that they will soon make a breakthrough and will arrest the culprits in this particular case. Thank you very much, Prajwal, for joining us on this broadcast. We're going to keep a very close watch on the investigation that is underway into this racial attack in Bengaluru. सिक्किम के एक युवक को नस्लीय दुर्व्यवहार का करना पड़ा सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 डिग्री टुडे। मैं आप सभी के साथ उमर शाह। बेंगलुरु से एक बेहद ही निंदनीय खबर सामने आई है, जहां पर सिक्किम के एक युवक को नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सिक्किम का युवक बेंगलुरु में पार्टी मनाकर अपने रूम जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे पीछे से घेर लिया और उसे बार बार चाइनीज कहकर पुकारने लगे। उस युवक ने बार बार कहा कि वह चाइनीज नहीं है बल्कि एक भारतीय है। यह कहने के बाद भी उसे बार बार चाइनीज कहकर पुकारा गया और थोड़ी ही देर बाद उसे पीछे से वार किया गया और उसे लातें भी मारी गई। फिलहाल उस युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और मामले की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन बदमाशों की तलाश भी जारी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं डिटेल्स में। घायल युवक की पहचान पश्चिमी सिक्किम के रिंचेंगपोंग के निवासी 30 वर्षीय दिनेश सुब्बा के रूप में हुई। इस घटना पर दिनेश सुब्बा ने कहा कि बुधवार सुबह करीब 3 बजे जब वह दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अपने रूम में जा रहे थे तो 3 बाइक सवार उनके पास आए। बाइक पर पीछे बैठे 2 लोगों ने उसे चाइनीज कहते हुए अपने हाथों से उसके सिर पर वार किया। दिनेश सुब्बा ने कहा कि मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि वे मुझे चाइनीज कहना बंद करें क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं पश्चिमी सिक्किम से हूँ, लेकिन तीनों ने मुझे चीनी कहना जारी रखा और जैसा कि मैं उन पर चिल्लाया वे चले गए। हालांकि कुछ मिनट बाद किसी ने कथित तौर पर दिनेश सुब्बा को फिर से पीछे से वार किया। उन्होंने कथित तौर पर उसके सिर और नाक पर किसी औजार से वार किया और लात भी मारी। उन्हें संदेह है कि जिन लोगों ने उन्हें मारा वे वही लोग थे जिन्होंने पहले उन्हें चाइनीज कहकर पुकारा था। इस घटना के बाद सुबह आगे की ओर चलते रहे, लेकिन जल्दी एक सुपरमार्केट के पास जाकर वे बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त इलाके में काम कर रहे सुरक्षा गार्डों ने उसे जगाया तो उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास कोई शर्ट नहीं थी और उसका बैग भी गायब था। इसके बाद सुबह ने अपने जीजा दीपक को बुलाया। दीपक ने कहा कि जब तक वे पहुँचे तब तक पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने सुपरमार्केट के सीसीटीवी फुटेज का स्कैन किया, लेकिन तीनों उसमें कैद नहीं हो पाए। हालांकि शिकायत के आधार पर प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
दोस्तों लोग को मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। सो मैं आज आप लोग को कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भारत मैप का जो दिखाने वाला हूँ मैं आप लोग को पहले बार में मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, और जो दिखाने वाला हूँ मैं अभी इंडिया का अंडर में कौन सा स्टेट कहाँ पे हो, सो मैं दिखाऊंगा आप लोग को। क्योंकि आप लोग अंत तक देखते रहना मेरा यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा। क्योंकि कोई लोग इंडिया का अंदर में रहने से भी रह कर, क्योंकि अपना ही इंडिया का स्टेट का नाम भी नहीं जानता है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कौन सा जगह में है, और वहाँ का स्टेट में कौन सा लोग रहता है वो भी नहीं जानता है, अपना ही इंडिया का जो अंडर में रहने वाला लोग। सो मैं यही बात के लिए आप लोग को मैं कुछ दिखाऊंगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर का जो मैप है तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग देखना ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, एक लिखा है सिक्किम, और एक लिखा है भूटान, और एक मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, और त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो मैं ये 7 सिस्टर को मैं दिखाऊंगा जो